नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का. हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट इन लाइफ. Friends, when I started my journey as a trader, this is way back in 2006, which was after my MBA, and I worked in Bombay for some time. After that, I came back to Calcutta and I started my own trading desk. One thing I knew कि मुझे करना ही है. If I at all have to become a serious full-time trader, I was very confident about one decision which I had to take, and that decision was to subscribe to Bloomberg. Friends, this is no more a news. I am a big fan of Bloomberg, and I totally credit my success, if I can use the term for myself, and my trading desk success to this beautiful, beautiful tool, Bloomberg, which Michael Bloomberg created. And I think this is the best thing which has happened to financial markets globally. Now, when I started the journey of using Bloomberg and looking at various data points, I understood that trading is not just about looking at price action. टिपिकली हम लोग सब समझते हैं कि आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाएंगे और मार्केट के अंदर में आप आराम से पैसा बना लेंगे. सही भी है, गलत नहीं है. बट जैसे जैसे मेरे अंदर में मेच्योरिटी आई, द वे आई वाज ग्रोइंग, द वे आई वाज लर्निंग मोर थिंग्स, आई रियलाइज दैट not only technical analysis, if you get access to other data points and you do various permutation and combinations of those data points, the probability of success as a trader goes up significantly. And since 2006, I've been an avid Bloomberg user. And as I said, that I'm totally fan of Bloomberg because it allows me to do all the permutation combinations and not just focus on price, but also focus on other important data variables which could help in the proper decision making. Now, during this journey of Bloomberg, I met a gentleman who is a guest today. He's an expert in Bloomberg. Let me just make this blanket statement first. He is part of Bloomberg. He has worked in Bloomberg for 11 years. And every time we had any problem with respect to Bloomberg, we knew the person to call. Someone who has a very, very deep understanding of technicals, जो technical analysis को घोट घोट के पी चुके हैं. Someone who is part of Bloomberg for 11 years as the core technical analyst specialist. दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जो डिस्कशन आज होने वाली है, मुझे लगता है कि इनसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही वॉज पार्ट ऑफ कोर ब्लूमबर्ग टीम जो टेक्निकल एनालिसिस पे स्पेशलाइज करते थे. And now he has other roles as well apart from his role as a specialist in technicals. उसके अलावा he is also part of CMT Association. दोस्तों, CMT जैसे CFA qualification है for equity research, CMT is a qualification for technical analysis. It's a global qualification. काफी लोग हैं जो CMT qualified है, और अक्षय ग्लोबल गवर्निंग बोर्ड के मेंबर हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज बात करने में अक्षय से. अक्षय, हाउ आर यू डूइंग? Vivek, thank you so much. I have to say that you have, with that introduction, made my job very, very simple. So I remember 18th March को Bloomberg का message आया that there is this unprecedented crisis that is that the world is facing, and we will all have to work from home until things change. एंड उस टाइम पे मुझे लगा कि चलो 2-3 हफ्तों का हनीमून है, आराम से घर से काम करेंगे, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताएंगे. बट हु न्यू 6 months out that we would still be in this situation. And of course, globally, despite all the progress that has been made in terms of treatments and discovering vaccines, it looks very unlikely, at least personally speaking, that 2020 may anyone will be able to access a normal world as we have known it. So 2021, I believe, is when things should start settling down. And I know a lot of people that I speak to, and we are really missing, connecting with friends, connecting with colleagues, just going out there and having fun with no need to look over our shoulders. But kya kare? These are unprecedented times, and you really have to do the best that you can. But it is such a pleasure, Vivek, connecting with you and the entire team at Stock Edge. I would have loved for this to happen in person, but nonetheless,
These are difficult times, and we do what we can. We control what we can. So such a pleasure being here, and thank you so much, Vivek, for this opportunity. Thank you, Akshay, for your kind time which you have given. And every crisis is an opportunity. So someone from market, we all have realized that last 6 months, I think we have never been so busy ever in life. So I much totally agree. opportunity in terms of being in the market as an active trader, being someone who is recording, learning content, and I'm also part of couple of our common WhatsApp groups where the kind of hyperactivity going on. So, and of course, the huge inflow of retail investors, massive, Of course. massive growth in terms of new people coming into the system. So, Akshay, uh, for me, as I said in my introduction, that Bloomberg has been like my god or my piece, which has helped me to build whatever I've done. And I'm sure that a lot of people who are coming in the market, they also kind of need such kind of a hand holding, such kind of a support. Unfortunately, Bloomberg as a tool is very expensive, so we are trying to That I build fully agree with. storage. Of course, if you ask me, it's a cheapest instrument. Trust me, because the kind of money you can make using Bloomberg is absolutely abnormal. But people need to learn how to do it. You're right, Vivek. Often we, because we face clients on a daily basis, this is the conversation that comes up almost every time. People say, "Oh, it's a very expensive tool," but it's expensive only if you look at the cost factor. Like you Yeah. rightly said, someone who's been a Bloomberg veteran is still okay paying that kind of a subscription fee every month because he knows the benefit that he can derive out of it. And when you start thinking in terms of benefits versus costs, like you rightly said, it's a system that pays for itself if you can manage to extract the right kind of insights from it. And that is what I would like to believe. And over the last 11 years that I've been in Bloomberg, I've seen the franchise grow from a certain number to a certain number that it is at today. And during this time, the cost of the terminal has only gone up. Yet the number of terminals and the number of subscribers has also increased. So clearly, people are maturing in terms of their decision-making process and are able to now align the benefits of what they get with the costs, and suddenly the name of the game is very different. So I totally agree with you. या करेक्ट करेक्ट पर अक्षय अगर देखो आप लास्ट 5-6 महीने से जो नए रिटेल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं एवरेज कैपिटल ऑफ 2 लाख 3 लाख रुपए तो ऑब्वियसली वो लोग ब्लूमबर्ग नहीं अफोर्ड कर सकते बट बिल्कुल बिल्कुल let us try to decode for them because these are low value people but still want to make money. They're coming into the market with some kind of a vision or some kind of an aspiration to make a lot of money from the market. So इस वीडियो में इस कॉन्वर्जेशन में I still want you to show the Bloomberg terminal and the strength of that tool, but idea is ki can we show them a perspective that absolutely. technical analysis is important, but once you get a holistic understanding of market through multiple data points, that's where you prepare yourself to become a consistent money making trader in the market. बिल्कुल सर. Great, great. So Akshay, before we start the conversation with you with respect to the concepts, I want you to talk about CMT as well. What this association or what this exam is all about, and how can this help people if they want to get into their journey of trading or analyst. Sure. So, Vivek, the CMT Association is the gold standard for technical analysis globally. It is an entity that is headquartered out of the US. They have an office in New York, and I'm happy to say that the only other physical office that they have globally is in Mumbai. And the Mumbai operations began roughly about 18 months ago. The operations are headed by an ex-Bloomberg colleague who has been in the education business for the longest time. I'm sure you know him. So just like you mentioned at the time of the introduction, the CFA charter is the gold standard when it comes to
defining the role of an equity research analyst. And similarly, if it's someone who wants to obtain a professional qualification which communicates to the world at large that this person is proficient in the world of technical analysis, then the equivalent of the CFA becomes the CMT, the Chartered Market Technician program. So this is, Vivek, essentially a three-level program. I did my CMT in 2012. And over the last years, I have seen that the curriculum has evolved with the direction that the industry itself has taken. Like I was saying, Vivek, 2012 में जब मैंने अपना CMT exam दिया, the focus back then was on conventional technical analysis. जैसे आपको तो पता ही होगा, लोग patterns को follow करते हैं, head and shoulders, triangles, double bottoms, double tops. ये सब जो conventional technical analysis के जो patterns थे, roughly about a decade ago, testing इनकी ज़्यादा होती थी exam पे. And then as the industry evolved, algorithmic trading इतनी बड़ी चीज बन गई. हम तो जानते ही हैं कि if we look at 2020, and I think the evolution really began post 2015. It was always there, but there was an explosion since 2014, 2015 in the domain of algorithmic trading or quantitative research. So जब ये हुआ, then the CMT curriculum realized that this was not restricted to a particular geography. It was a phenomenon that was occurring globally, regardless of where you were, whether you were in the US or Asia or Europe. It didn't matter. Everyone was starting to learn programming. People who had programming experience were trying to learn new languages and apply some of these theories in the world of finance. So it was global. And that's when the CMT Association realized that if we are able to pivot the curriculum in that direction, so technical analysis and conventional technical analysis to hamesha hoga hi, because that is the bedrock of all that happened like 100 years ago, maybe 50 years ago with Charles Dow and Ralph Nelson Elliott and ये सब जो legends थे technical analysis की दुनिया में. तो इनके original methods तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे ही. But people were starting to, talk a lot about, can we quantify a particular theory? Can we mathematically prove that head and shoulders patterns या triangles में कुछ alpha मिलता है? So as more and more of this started happening, the association decided that in order to attract more people to kind of gain expertise in the domain of technical analysis, they will also have to align the curriculum in that direction. और तब से जो changes हुए हैं, they have become so prevalent. They have become so normal now that the curriculum has moved away from being 100% oriented towards conventional technical analysis to now being a balancing act between the modern world of finance that we are fortunately a part of, and conventional technical analysis methods that continue to be used by traders and investors, regardless of their size, regardless of their horizon. So it's now a balancing act. So we've really come to an area where we are now looking at the best of both worlds. And that is why I think, so if I speak of India, Vivek, I'm happy to share some stats with you. Outside of the US, I think the fastest growing market for the CMT Association in terms of the number of test takers is actually India. And I know for a fact that Indians को किसी भी किस्म का exam देने में बहुत excitement होता है. But the jump that we've seen in the number of people inquiring about the CMT exam, because they are now coming to realize that they will themselves get a lot of credibility, a lot of visibility if they are able to merge conventional technical analysis with a quantitative process. So that formal structure is now incentivizing a lot of people to inquire about the CMT and how it can benefit them in their professional careers, either as employees working for a large firm or in their own trading process if they choose to become individual traders. So that's what the evolution looks like. Sahi hai. So that's great. Thank you for that brief introduction and evolution of CMT qualifications. So friends, if you want to kind of take technical analysis as a serious occupation, then this is one qualification which you can look at. Small disclaimer, I have no commercial interest in this discussion.
because I love Akshay, because I love the CMT team, I'm sharing this thought with you guys. I'm myself not a CMT. Maybe hopefully someday I'll aspire to become one. Well, बनवाएंगे हम Akshay, आपको कभी ना कभी. thank you. Akshay, you have touched a very, very interesting topic, which is conventional technicals and the modern technicals. और मुझे पता है कि आपके पास आपके ब्लूमबर्ग टर्मिनल का एक्सेस है. Okay. Now, friends, बिल्कुल this सर. is something which we didn't plan, okay? And this is the beauty of my face-to-face that I try to push it impromptu. So, मुझे आप अपना Bloomberg terminal यूज करके कन्वेंशनल टेक्निकल जो कि सबको यूज करते हैं और मॉडर्न टेक्निकल, ये दोनों का डिफरेंस आप समझाइए. और उसके बाद जो बिल्कुल. अपना एजेंडा है कि और क्या क्या डेटा पॉइंट किसी को देखना चाहिए मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए, वो सारा आप मेरे को समझाइए अभी. सो लेट मी जस्ट गिव यू द प्रेजेंटेशन राइट. Thank you so much, Vivek. Okay, blow out my Bloomberg screen. Vivek, can you please Yeah, confirm if you're able to see this? yeah, I can see it. I can see it. Excellent. So, ladies and gentlemen, this is the Bloomberg terminal, and I will obviously, it's an ocean. Last I checked, there were roughly 25,000 functions on Bloomberg, and given that this is a very, very brief interaction with my dear friend Vivek, I will show you some functions which asset managers and traders are typically use on the Bloomberg terminal. So Vivek, let me start with something on the INR, because the INR is one particular security which has been moving a lot lately. So the first thing that I want to really talk about, and this is something that's very new, हमेशा मुझे ये फीडबैक मिला है नए ब्लूमबर्ग सब्सक्राइबर्स से कि यार ब्लूमबर्ग पे ना डेटा ढूंढना बहुत मुश्किल है. सो अनलेस यू आर अ ब्लूमबर्ग वेटरन, जो आप चाहते हो उसको ढूंढने में थोड़ी मेहनत लगती है. And we took that feedback because it was not feedback restricted to Indian clients. It was something more global. So our product managers took that feedback, and I'm happy to demonstrate that Bloomberg has now become very similar to Google. तो अब हमने ऐसा कुछ कर दिया है कि आपको, इफ यू आर न्यू टू द ब्लूमबर्ग टर्मिनल, आपको ढेर सारे फंक्शंस याद रखने की जरूरत नहीं है. अगर आपके पास ब्लूमबर्ग नहीं होता, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होती, तो आप गूगल पे जाते, गूगल के सर्च बार में टाइप करते जो आपको चाहिए, और फिर जो मैचेस आते हैं उनमें से आप सिलेक्ट करते और उस लिंक पे जाते जहां से आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिलती. अब ब्लूमबर्ग टर्मिनल ने भी ऐसा कुछ कर दिया है. सो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ, and I'll go really slow, Vivek, so that our listeners understand what we are really trying to get to. Suppose मुझे ये देखना है कि पिछले 5 सालों में, in the last 5 years, अगर मैं monthly data देखूं, which has been the month where the USD INR fell the most in the last 5 years. Okay. मेरा सवाल सिंपल है, पिछले 5 साल का मैं रेंज लूंगा और मैं जानना चाहता हूं मंथ ऑन मंथ, एब्सोल्यूट टर्म्स में, नेट टर्म्स में, परसेंटेज टर्म्स में नहीं, बट नेट टर्म्स में डॉलर रुपी का सबसे बड़ा फॉल किस महीने में आया, और मैं 5 साल का डेटा लूंगा. अब इस सवाल को आंसर करने के विवेक जी बहुत सारे तरीके हैं. जो ब्लूमबर्ग वेटरन्स हैं वो फंक्शंस रन करेंगे और फाइनली उनको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा. बट नाउ what I want to demonstrate, like I've been saying in the last 2 minutes, is how simple we've made the whole Bloomberg experience, even for people who are new to Bloomberg, so that they can, answer this question without loading a single function. Functions भी आप run कर सकते हो, but अगर 2 मिनट का काम 10 सेकंड में हो सकता है तो क्यों नहीं. So the way to do this, Vivek, is to leverage something called natural language programming, जो हमने backend में build किया हुआ है. So what I'm going to do is, I'm going to start my query with this word called chart. तो मैंने chart यहाँ पे type कर दिया है. Now what I will do is, I will simply type the security. तो मुझे USD INR का data चाहिए. मुझे month on month visualization देखना है. So currently on the command line there are 3 words: chart, which is what I want to see; USD INR, which is the security whose information I seek; month on month, because I'm looking at month on month change; and then I will define कि मुझे क्या चाहिए. मुझे net change चाहिए. अगर मुझे percentage change चाहिए होता तो मैं वहां पे percent symbol enter करके change type करता, but मुझे net change चाहिए और मुझे histogram के format में ये view चाहिए. So I want a histogram view
ओवर द लास्ट 5 years, ये मेरी क्वेरी है। मैंने ना कोई फंक्शन रन किया है, मैंने ना कोई कॉम्प्लिकेटेड स्क्रीन लोड किया है, मैं सिर्फ चाहता हूं मुझे ये डेटा मिले, ताकि in the end I'm able to answer my original question, which is that I want to see over the last 5 years which has been the month that has resulted in the dollar falling the most against the rupee. That's one part. Or rising the most against the rupee. तो विवेक जी, मैं क्या करूंगा, ये मेरी सारी क्वेरी जो है वो टाइप हो गई है। आई विल जस्ट हिट एंटर एंड सी व्हाट हैपेंस। होपफुली आज संडे है तो ब्लूमबर्ग टर्मिनल मुझे धोखा नहीं देगा, बट यू कैन सी व्हाट हैज हैपेंड। माय गॉड। सो you can see the start year is 2015 and the end year is, and the end month is August 2020, because September abhi tak khatam nahi hua hai. The natural language program at the back end, NLP as we call it, उसने आपके जो मेरी जो क्वेरी थी उसको पार्स किया और समझ गया कि मंथ ऑन मंथ जो है विजुअल अक्षय को देखना है, तो उसने इस चार्ट को ऑटोमेटिकली मंथली कर दिया है और हर मंथ के लिए आपको उसने एक हिस्टोग्राम दे दिया है। So what this really does, Vivek, now is that if you look at the histograms starting September 2015 ending 31st August 2020, पहले हम उस हिस्टोग्राम को देखते हैं जो नेगेटिव था, जो नेगेटिव नेट चेंज दिखाता है, एंड आई कैन इजीली सी that November 2018, because of the relative size of that histogram, was the month during which the USD lost the most ground against the rupee. एक सिंपल क्वेरी के बदौलत मैंने ये इंफॉर्मेशन निकाल ली। मैं दोहराता हूं, इस चीज को आंसर करने का एक और तरीका था, एट मिनिमम। काफी तरीके हो सकते हैं, बट मैं एक और तरीका जानता हूं जिससे हम एग्जैक्टली ये आउटपुट निकाल सकते थे, बट उसके लिए मुझे लाइन चार्ट को हिस्टोग्राम बनाना पड़ता, उसके लिए मुझे डेली चार्ट को मंथली करना पड़ता, उसमें काफी सारे क्लिक्स इन्वॉल्व होते। बट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बदौलत, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं प्रोसेसिंग, एक ही चीज है, उसके बदौलत मैंने सिर्फ गूगल में जो मैं टाइप करता मैंने वही टाइप किया एंड एक आउटपुट आ गया है मेरे सामने एग्जैक्टली इन द वे आई डिजायर्ड, व्हिच मेक्स इट वेरी सिंपल फॉर मी टू क्विकली आंसर द क्वेश्चन and see that November 2018 was the month during which the dollar lost the most against the rupee. And similarly, if I look at the positive net change number, then this particular month, which is, let me see here, which is March of 2020, was the month that saw the largest positive net change for the dollar in the last 5 years. तो विवेक जी, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? सही है सर, ब्लूमबर्ग का तो डेप्थ और कैपेबिलिटी तो कोई डाउट नहीं है सर। और मैं अपने यूजर्स को बता देता हूं कि ये जितना भी कार्य कर रहे हैं अक्षय, इट इज इन ब्लूमबर्ग टर्मिनल। ये bloomberg.com वेबसाइट पे नहीं कर रहे हैं, या वो जो फ्री ऐप है उनमें नहीं कर रहे हैं। दिस इज अ ब्लूमबर्ग टर्मिनल विच इज अ सब्सक्राइबेशन प्रोडक्ट जिसका एक कॉस्ट है। तो वो हमारा एजेंडा नहीं है डिस्कस करने का। हमारा एजेंडा है कि कैसे आप अलग अलग तरीके के डेटा पॉइंट्स को देख सकते हैं और उससे जजमेंट बना सकते हैं। तो अक्षय ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि एक अच्छा टूल होने से फायदा ये होता है कि आप सोचो और उस सोच के हिसाब से तुरंत आउटपुट आता है ना, तो आपका डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो जाता है। दैट्स व्हाट प्रोबब्ली अक्षय इज ट्राइंग टू से। सो ग्रेट अक्षय, दिस इज ऑसम एज यूजुअल। So now what I will do is एक चीज मैं और दिखाना चाहूंगा हमारे लिसनर्स के बेनिफिट के लिए। न्यूज जो चीज होती है आजकल, तो न्यूज ऑलमोस्ट मिली सेकेंड बेसिस पे फ्लो होता है, तो इतना सारा न्यूज है, मैं कैसे सेग्रीगेट करूं कि कौन सा न्यूज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा गुड टू हैव है, कौन सा मस्ट हैव है। तो अगेन जस्ट टू फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सपोज मुझे अब आजकल तो पता है यूएस इलेक्शंस आने वाले हैं एक आध दो महीने में, और ज्यादातर जिनसे मैं बात करता हूँ वो ये समझते हैं कि ट्रम्प को सेकेंड टर्म मिलेगा। तो और आपको ये भी पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प ट्विटर पे बहुत एक्टिव है, और उनको हम अब ये कोई सीक्रेट रहा नहीं कि चाइना से उनको कितना प्यार है। तो चाइना के बारे में वो आए दिन ट्वीट करते रहते हैं। तो अगर मुझे ये देखना है कि ऐसे कौन से ट्वीट्स हैं डोनाल्ड ट्रम्प के जिसमें चाइना एक कीवर्ड नहीं है, ओके, इसको हम कैसे निकालें? तो वापस प्रोसेस बहुत सिंपल है, मैं कोई फंक्शन रन नहीं करूंगा,
इस पहले एग्जाम्पल में, डॉलर रुपी के एग्जाम्पल में, हमने जो क्वेरी की शुरुआत की वो हमने चार्ट शब्द से की। इस बार मैं देखना चाहता हूं कि मुझे सारे वो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स देखने हैं जिसमें चाइना ये जो शब्द है ये उन्होंने यूज नहीं किया होना चाहिए। तो मैं कैसे करूंगा इसको? तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली टाइप ट्वीट्स, वहां पे चार्ट था, यहाँ पे ट्वीट्स हो गए। मैं टाइप करूंगा किसके ट्वीट्स मुझे देखने हैं, तो मुझे डोनाल्ड ट्रंप जी के ट्वीट्स देखने हैं, बट मैं वहां पे एक एडिशनल क्राइटेरिया डालूंगा, वो है नॉट चाइना। सिंपल क्वेरी है, इंग्लिश लैंग्वेज क्वेरी है, ना मुझे ये जानने की जरूरत है कि ट्वीट्स लोड करने का फंक्शन ब्लूमबर्ग टर्मिनल पे क्या है, डोनाल्ड ट्रंप को मैं कैसे ढूंढूं, नॉट चाइना को मैं कैसे फिल्टर करूं। ये सारी चीजें हो सकती है बहुत डिफिकल्ट तरीके से, बट एनएलपी की वजह से अब वो दुनिया, उस दुनिया से हम दूर जा रहे हैं, हम ईज ऑफ यूज की दुनिया में आ गए हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ, मैंने टाइप किया है ट्वीट्स बाय डोनाल्ड ट्रंप बट नॉट चाइना, और जैसे ही मैं एंटर करता हूं सारे के सारे ट्वीट्स आ गए। बट आई कैन प्रॉमिस यू विवेक जी, किसी भी ट्वीट में देयर इज नो रेफरेंस टू चाइना। So So powerful. that is what we are trying to build. We are trying to make the experience simple for someone who's probably looking at the terminal for the first time ever in his life. और जनरली ये हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है कि जब हम नया सब्सक्राइबर ऑनबोर्ड करते हैं, उसके हैंड होल्डिंग में कम से कम 3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं। तो वो हमको बताता है कि भाई मेरा वर्कफ्लो ये है, आप मुझे ये सारी चीजें बना के दो। बट अब एनएलपी की वजह से द क्लाइंट or the subscriber, that new subscriber does not have to depend on Akshay or on anyone from Bloomberg to kind of get started with using the terminal. These things are being built to give him all of the tools necessary to see exactly what he wants. तो ये एक और चीज है जो Akshay, typically Bloomberg is used by जो प्रोफेशनली ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कम्युनिटी में इन्वॉल्व है, चाहे वो फंड मैनेजर है, चाहे एक्टिव ट्रेडर्स हैं। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि द whole industry is now moving out of simple price chart based judgment to more complex data points like these, कि डोनाल्ड ट्रंप क्या ट्वीट कर रहे हैं, दिस इज कॉम्प्लेक्स डेटा पॉइंट। तो आर यू सजेस्टिंग दैट these data points has to become part of your future some kind of a trading strategy or trading model with someone device? Absolutely, sir. It is no longer a secret that a tweet by an individual who matters can really move prices. इसीलिए आज मशीन लर्निंग या एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की दुनिया में ट्विटर सेंटिमेंट इज बीइंग यूज्ड एज अ की इनपुट। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। Before Tesla started rallying the way it has rallied this year, टेस्ला अगर आप देखोगे 2019 में या 2018 में, it was underperforming the broad indices. And there, I distinctly remember this one example where Tesla was in the news for the wrong reasons. काफी सारा sentiment जो था, न्यूज सेंटिमेंट या ट्विटर सेंटिमेंट आप बोल लीजिए, टेस्ला पे काफी नेगेटिव था। And at one point, the Twitter sentiment indicators of Bloomberg available hai on Tesla got so negative that you would think as a trader that the world is breaking apart for Tesla. और इससे worse news कोई हो नहीं सकती। And trust me विवेक जी, that day was the bottom for Tesla. उसके बाद उसने वो प्राइस कभी नहीं देखा। So if these newer data sets are able to ingest things like Twitter sentiment or news sentiment, or generally speaking social media sentiment into an algo, then I know there are a lot of algos that actually leverage this information to decide when to buy, when not to buy, when to sell and when not to sell. ये सब already इन चीजों की शुरुआत हो चुकी है। So दोस्तों, अगर आप sorry Akshay, just एक छोटी सी kind of a warning to all the retail traders who are looking at this, that अगर आप ये सोचते हैं कि न्यूज देख के आप स्टॉक प्राइस में पार्टिसिपेट कर लेंगे, तो आपको ये समझना चाहिए कि जो ऊपर में लोग बैठे हैं, जिनके पास ब्लूमबर्ग जैसे टूल का एक्सेस है, जिनके पास एल्गो ट्रेडिंग सेटअप है, वो न्यूज देख के बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं।
तो शायद न्यूज के बाद में आप जैसा रिएक्शन चाहते हैं स्टॉक वैसा रिएक्शन नहीं दे। कई बार होता है कि आप बोलते हैं कि रिजल्ट तो अच्छा था लेकिन स्टॉक गिर गया। बिल्कुल। आपको ये समझना चाहिए कि ये जो डोमेन है कि इम्पैक्ट जो होता है एक न्यूज के कारण, एक रिजल्ट के कारण, ये डोमेन में ऊपर वाले बहुत सफोस्टिकेटेड टूल लेके बैठे हैं, उनसे लड़ना बड़ा डिफिकल्ट है। क्यों अक्षय, क्या मैं बोल सकता हूँ ये? बिल्कुल सर, बिल्कुल डिफिकल्ट है। और जितना, क्योंकि मैं भी ट्रेडर रहा हूँ फॉर ब्रीफ पीरियड, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एंड आई सीन दिस सो मेनी टाइम्स। और ये चीज तो बिल्कुल बदली नहीं है, 15 साल मुझे हो गए इंडस्ट्री में, बट एक चीज जो बदली नहीं है वो ये है कि जब तक आपको पता चलता है कि एक स्टॉक में एक न्यूज आ गई है, तब तक जो बड़े लोग हैं उन्होंने यू नो जो भी उनको करना था वो कर लिया होता है। और इसीलिए जैसे विवेक जी ने अभी सही कहा, रिजल्ट तो बहुत बढ़िया है, एक्सपेक्टेड था। एक एग्जांपल देता हूँ, 10 रुपए का ईपीएस एक्सपेक्टेड था, 20 रुपए आया, मैंने बाय कर लिया बिकॉज 100% ईपीएस बीट हुआ। मैंने बाय कर लिया और मेरा जो बाइंग प्राइस था वही उस स्टॉक का टॉप बना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्मार्ट मनी है वो ब्लूमबर्ग जैसे टूल्स यूज करें या कुछ और यूज करें, एल्गोरिथम्स यूज करें, उनको अब पता नहीं कैसे पता होता है, बट उनको पता होता है कि इस कंपनी का जो रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि उनके पास एक्सेस है, सिंपल पैमाने पे बोलूं विवेक जी, सो अगर इफ यू आर रनिंग $1 बिलियन फंड, आप सोचो आपका रिसर्च कितना पावरफुल होगा, आप सोचो आपका नेटवर्क कितना पावरफुल होगा। तो जब आप उस सर्कल के लोगों से बात करते हो एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, कंपनी जो रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है एक हफ्ते बाद, तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि यार ये इस कंपनी का रिजल्ट कैसा होगा। सो एवरीथिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ऐसे कोई डेफिनेटिव साइंस नहीं है कि मुझे पता है कि इसका ईपीएस 10 की जगह 20 रुपए आएगा, वो आपको पता नहीं है, बट आपको एक जनरल आइडिया आ जाता है कि 90% of those smart money people that I'm talking to, they are expecting this stock to rally, तो वो अपना काम पहले ही कर लेंगे। और आप क्या करोगे, आप रिजल्ट तक वेट करोगे, और जैसे ही रिजल्ट आता है, अरे ईपीएस तो एक्सपेक्टेड था 10, 20 हो गया, अब मैं बाय करता हूं, बहुत बढ़िया बीट है। And I have seen it enough number of times to be convinced that by the time the retail guy gets into the market or is able to, either through a newspaper article or online, the smart money has already done its job and now they are looking to liquidate out of the stock. ये आपने भी देखा होगा विवेक जी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मुझे आज भी याद है, तो लास्ट यूएस इलेक्शंस जब थे, तो मैं उस दिन श्रीलंका में था एंड काउंटिंग हो रही थी। मुझे ये पता नहीं है कि आप में से कितने लोग उस दिन मार्केट में थे, बट उस दिन जो समंदर था वो पूरा लाल था। सो एक्विटीज डाउन थे, कमोडिटीज डाउन थे, द डॉलर वाज डाउन। क्यों? क्योंकि लोगों को रियलाइज हुआ एज द काउंटिंग स्टार्टेड टू कम इन, दैट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, and you will agree with me, Vivek ji, that Hillary Clinton was expected to win comfortably. But as the numbers started coming in, people woke up to the fact that Donald Trump could be the next US president. और sentiment इतना negative था, anything that you picked that day was in the red. But let me also tell you, उस दिन जो equity markets में और commodities में जो lows बने, they became the lows that kicked off the next bull market. सही है। So ये सब चीजें, सेंटिमेंट इतना नेगेटिव, मुझे क्या करना चाहिए? लॉजिकली तो बेचना चाहिए, देयर इज सो मच फियर, बट जैसे वॉरेन बफेट साहब ने बोला है कि बाय व्हेन देयर इज मैक्सिमम फियर, बी ग्रीडी व्हेन द वर्ल्ड इज फियरफुल। वो दिन जो था, इट वाज अ रियल लाइफ एग्जांपल दैट पुट दैट कोट टू द टेस्ट, एंड अगेन वॉरेन बफेट वाज प्रूवन राइट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो अक्षय, आई थिंक थोड़ा बहुत तो हमने रिटेल इन्वेस्टर जो या इंडिविजुअल ट्रेडर है उनको थोड़ा बहुत तो डरा दिया है कि भाई हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज सिचुएशन में हैं, तो आप थोड़ा उनको ना सोल्यूशन दीजिए कि जो बंदा बिल्कुल ये बिल्कुल सब टूल्स नहीं एक्सेस कर सकता है, इसके पास 2-3 लाख का कैपिटल है बट उसको भी पैसा बनाने का हक है मार्केट से, तो थोड़ा बिल्कुल सर। सिंपल रूप में उनको बताते हैं कि कैसे वो लोग पैसा कमाने का एक सिस्टम बना सकते हैं अपने लिए, इवन दो द टॉप गाइज विल हैव बेटर एज ओवर देम, बट स्टिल दे कैन अफोर्ड टू मेक सम मनी आउट ऑफ द मार्केट। प्लीज लेट इट बी मोर सिंपल नाउ। एब्सोल्युटली सर, अभी मैं सिंपल चीजें दिखाऊंगा, 3-4 चीजें दिखाऊंगा।
लेट मी स्टार्ट विद द निफ्टी बिकॉज आई एम श्योर सारे हमारे जो लिसनर्स हैं काफी सारे निफ्टी को ट्रेड करते ही होंगे। तो अभी एक सिंपल क्वेरी रन करते हैं। मुझे ये देखना है कि मंथ ऑन मंथ ऑन अ मंथली बेसिस अगर मैं पिछले 10 साल का डेटा देखूं तो वो कौन सा महीना है जनरली जब निफ्टी ऊपर जाता है और वो कौन सा महीना है जनरली जब निफ्टी नीचे जाता है। रीजन कुछ भी हो, क्या ये चीज मैं यूज करके एक अपना एज बना सकता हूं। एज एन एग्जाम्पल विवेक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 10 साल का मैं डेटा देखूंगा और मुझे ये दिखता है कि पिछले 9 दिसंबर में निफ्टी ऊपर गया है, तो फिर 2020 दिसंबर में या नवंबर एंड में मैं निफ्टी शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हिस्ट्री मुझे ये कहती है कि 90% ऑफ द टाइम ओवर द लास्ट 10 इयर्स दिसंबर में निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। सो ये सब जो डेटा है, although this is not pure price data, from an idea generation perspective कि मुझे क्या करना चाहिए और मोर इम्पोर्टेंटली क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको मैं कैसे देखूं? So this data is something that Bloomberg पे तो अवेलेबल है ही, बट बाकी सारे काफी सिस्टम्स जो जो मुझे एक्सपोजर जिनका मिला है उनमें भी है, और ये तो आप सिंपल एक्सेल में भी क्रिएट कर सकते हो। सो लेकिन आज हम ब्लूमबर्ग की बात कर रहे हैं, तो मैं ब्लूमबर्ग का वो स्क्रीन लोड करता हूँ। तो निफ्टी का जो है मैंने टिक टाइप किया है, उसके बाद मैं एक फंक्शन रन करूंगा जिसको हम कहते हैं सीजनलिटी, और इसको हम रन करते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्क्रीन लगेगा एट द स्टार्ट, बट इसको मैं बहुत सिंप्लीफाई कर दूंगा। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड ये स्क्रीन क्या है। अब देखिए, पहली चीज तो ये है कि मुझे 10 साल का एनालिसिस करना है, तो ये जो 5 इयर्स जो वहां पे इनपुट है इसको मैं 10 साल कर दूंगा। एंड आई एम लुकिंग एट कैलेंडर ईयर परफॉर्मेंस, विवेक जी। सो यू विल सी दैट देयर आर 10 कलर्ड लाइंस। हर लाइन एक पर्टिकुलर साल को रिप्रेजेंट करती है। जैसे अगर मैं देखूं, ऑरेंज लाइन 2018 का मूवमेंट है, जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 तक। तो हर लाइन एक पर्टिकुलर साल को रिप्रेजेंट करती है, और मेरे पास 10 लाइंस आ गए हैं इंक्लूडिंग 2020 अभी तक खत्म नहीं हुआ है। एंड वी आर गोइंग फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर ऑफ एवरी ईयर। अब ऐसा है कि इतने सारे लाइंस आने के बाद चार्ट को रीड करना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या मैं इसको एक सिंपलिस्टिक व्यू में देख सकता हूं? एंड फाइनली मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि ओवर द लास्ट 10 इयर्स व्हिच हैज बीन अ गुड मंथ टू बी लॉन्ग द निफ्टी एंड व्हिच हैज बीन अ गुड मंथ टू बी शॉर्ट द निफ्टी? ये मेरा सवाल है। सो व्हाट आई विल नाउ डू इज, इस लाइन चार्ट से मैं दूर हटकर आई विल क्लिक ऑन समथिंग कॉल्ड हीट मैप, एंड as you will see, Vivek ji, and the rest of our listeners will see, this makes the process very simple. अब इसको देखिए। सो अब मैं समझाता हूं कि ये डैशबोर्ड क्या है। सो जितने भी साल हमने चूज किए हैं वो रो वाइज यहाँ पे है, और जितने भी मंथ्स हैं जनवरी टू दिसंबर वो कॉलम्स हैं। एंड यू विल रियलाइज वेरी क्विकली बाय लुकिंग एट दिस स्क्रीन दैट जनरली अक्टूबर के महीने में अगर आप देखोगे, तो आई एम लुकिंग एट अक्टूबर अक्रॉस द डिफरेंट ईयर्स, जनरली जो है the Nifty has generated a positive return. ये परसेंटेज टर्म्स में मैं मेजर कर रहा हूं। तो अब परसेंटेज टर्म्स का मतलब क्या हुआ, विवेक जी? आई एम सिंपली लुकिंग एट द लास्ट क्लोज on the in the previous month, which is September, and then I'm comparing it with the final close in the month of October. उसका परसेंटेज गेन या लॉस कितना हुआ है, that is what is being captured in terms of percent change. तो आप देखो, in the last roughly 10 years, there have been 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Octobers where the Nifty has actually generated a positive return. आप समझ रहे हो? तो अगर सितंबर एंड में मेरा व्यू ये है कि मैं निफ्टी को शॉर्ट करूंगा, या तो फ्यूचर शॉर्ट करूंगा, या पुट्स खरीदूंगा, या कॉल्स बेचूंगा, एंड दिस इज योर व्यू फॉर अक्टूबर, हिस्ट्री इज नॉट ऑन योर साइड। आप समझ गए? एंड सिमिलरली आप देखो नवंबर में क्या होता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। सो लार्जली अक्टूबर हैज जनरेटेड पॉजिटिव रिटर्न्स इन द लास्ट 10 इयर्स, बट नवंबर में आई कैन सी मोर रेड्स व्हेन कंपेयर्ड टू ग्रीन। तो अक्टूबर एंड में अगर मैं ये सोचूं कि भाई एंड ऑफ द ईयर आ रहा है, म्यूचुअल फंड एनएवीज जो है, एसेट मैनेजर्स प्रॉप अप करने की कोशिश करेंगे, तो मैं अब लॉन्ग कर लेता हूं। अगेन हिस्ट्री विल बी अगेंस्ट इट, बिकॉज जनरली at least looking at the last 10 years of data, November में
the Nifty's return has been more negative than positive. So there is no technical analysis here. This is a very simple screen जो आपको एक historical perspective देता है. अब अगर मैं इस screen को देख रहा हूं और मुझे ये समझ में आ गया कि 70% of the time in the last 10 years October has been positive, मैं definitely short नहीं करूं. And this is very very vital information to have. क्या कहते हो विवेक? करेक्ट, एकदम एब्सोल्युटली. और मुझे अगर अपसाइड का कोई ब्रेकआउट नजर आएगा तो मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा उस ब्रेकआउट को खेलने में. एब्सोल्युटली. तो आप इस पर्सपेक्टिव को आप अपने माइंड में रखिए, फिर आप चार्ट पे जाइए और देखिए कि जैसे विवेक जी ने सही महीने में कहा कि 70% ऑफ द टाइम मैंने सीजनैलिटी देखा, 70% ऑफ द टाइम अक्टूबर हैज बीन पॉजिटिव. और अभी मैं जब प्राइस चार्ट खोलता हूं तो मुझे दिखता है कि अरे RSI तो 50 के ऊपर चला गया है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गई है. अब मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ना चाहिए और बढ़ेगा ही वैसे. सही है, सही है, सही है. Got your point. So this is one screen which I often discuss with people. It's a great screen to have. अब क्या ये screen सिर्फ equities के लिए है? क्या ये individual stocks के लिए मैं देख सकता हूँ? क्या मैं commodities के लिए देख सकता हूँ? Of course. I mean आप अगर ऐसा interface Excel पे भी बनाओगे, then you want to ensure that वो सारे security types को support करे. So as a quick run through, एक particular stock which obviously has been in the news for the right reasons is Reliance. अब मैं Reliance, मैंने Nifty को Reliance से replace कर दिया है. और आप देखो surprisingly September और October में over the last 10 years Reliance has been largely positive, but generally in November you cannot be confident holding a long position in Reliance if history is any guide. Correct. That's great information to have. Even if I was not doing indices, even if I was simply doing stocks, this is very very important information to have. So ये था seasonality. I hope हमारे listeners को एक flavor आ गया है as to how this information can be used. सही है. Fantastic. Very good. Now let us move to something that बहुत लोग करते हैं. मैं opportunities कैसे ढूंढूं? Bullish engulfing, candlesticks की बात करते हैं. Bullish engulfing कहाँ पे बना है? Bearish engulfing कहाँ पे बना है? ये जो सवाल है, this is one part of the overall decision making process. दूसरा सवाल ये है कि अगर bullish engulfing, तो चलो मुझे समझ में आ गया है, मुझे exactly पता है bullish engulfing होता क्या है, कब उसको यूज करना चाहिए. बट मैं ये भी देखना चाहूंगा कि अगर एक चार्ट पे आज bullish engulfing बना है, उस bullish engulfing के चार्ट पे बनने का हिस्टोरिकली परफॉर्मेंस कैसा रहा है गोइंग फॉरवर्ड. सो सपोज एक चार्ट में खोलता हूँ, मैं देखता हूँ कि अरे मुझे अलर्ट आ गया है, चलो बुलिश एनगल्फिंग चार्ट पे बन गया है. बट क्या उस चार्ट पे बुलिश एनगल्फिंग ने प्रीवियसली काम किया है? अगर नहीं किया है तो इस वाले बुलिश एनगल्फिंग को जो आज चार्ट पे आ गया है उसको मैं ज्यादा अटेंशन नहीं दूंगा. सो ये प्रोसेस क्या है? वेरी सिंपली पुट, दिस इज बैक टेस्टिंग. तो अब मैं थोड़ा सा 5 मिनट लेना चाहूंगा विवेक जी ऑन बैक टेस्टिंग, जस्ट टू शो पीपल की बैक टेस्टिंग करते कैसे. So what I will very quickly do is I will go to this page called BT for back testing, और एक simple query मैं run करता हूँ. So actually मैंने वो screen already बनाया है, so let us not build anything from scratch. Let us just use the screen that I have. देखता हूँ. अच्छा, यहाँ पे मेरे पास है नहीं तो 1 मिनट लगेगा, मैं तुरंत बना देता हूँ. I want to test the strategy which backtests the performance of a bullish engulfing. Bullish engulfing तो आ गया है. Now I want to test the performance of the bullish engulfing. और हम ये Nifty पे रन करेंगे. So let me quickly set up the rules. Vivek ji, just give me 1 second. Yeah. ये मैंने bullish engulfing को choose कर लिया है. I will just call this bull engulf. इसको एक नाम दे देते हैं. And एक simple long only strategy हम test करते हैं विवेक जी. So I will enter long at the current candle's close when a bullish engulfing occurs. इन rules को समझने की फिलहाल जरूरत नहीं है. I'm just saying कि अगर bullish engulfing बना तो उस candle के close पे आप long करो. And then ये देखिए मैंने enter long का position यहाँ पे लिया हुआ है. And then I will add another rule and I will say exit long जब, एंड आई यूज, जैसे लोग ट्रेड करते हैं तो बोलते हैं चलो बुलिश एनगल्फिंग बन गया है, मैं बाय कर लूंगा और मेरा टेक प्रॉफिट होगा सपोज 3% और मेरा स्टॉप लॉस होगा 1%. तो इस स्ट्रैटेजी को, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है ये. इसके लिए ये जरूरी नहीं कि आपके पास ब्लूमबर्ग हो.
तो रूल्स क्या है, बुलिश एनगल्फिंग बना तो मैं लॉन्ग चला जाऊंगा, मेरा टेक प्रॉफिट है 3% और मेरा स्टॉप लॉस अज्यूम करते हैं कि 1.5% है। तो व्हाट आई विल नाउ डू इज आई विल सेट अप माय टेक प्रॉफिट rule. So max profit as a percentage of price should be greater than or equal to 3%. रूल शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट ये रूल, इसका सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है कि मेरे लॉन्ग जाने के बाद अगर मार्केट ने मेरा टेक प्रॉफिट टारगेट जो है 3% मिनिमम अगर वो अचीव किया तो आप जो लॉन्ग पोजीशन है उसको काट दो। सो दैट इज वन वे इन विच यू कैन क्लोज योर लॉन्ग पोजीशन। व्हाट इज द अदर वे? मार्केट, आप तो चाहते हो कि टेक प्रॉफिट हो, बट मार्केट उल्टी डायरेक्शन में अगर चला गया और आपका जो स्टॉप लॉस है अगर 2%, जो एंट्री प्राइस है आपका सपोज 100 रुपीज था, सो 98 आपका स्टॉप लॉस है, अगर वो हिट हो गया तो आपका लॉन्ग पोजीशन लॉस में कट जाएगा। सो नाउ आई विल क्रिएट अ रूल फॉर अ स्टॉप ऑर्डर। बहुत सिंपल। तो यहाँ पे 2% का स्टॉप लॉस रखूंगा मैं, 3% का मेरा टेक प्रॉफिट है। अब इस स्ट्रैटेजी को हम बैक टेस्ट करेंगे। वी विल कॉल दिस बुलिश एनगल्फिंग विद मनी मैनेजमेंट रूल्स। मनी मैनेजमेंट यानी कि टेक प्रॉफिट रूल भी है और स्टॉप लॉस रूल भी है। इसको मैं सेव करूंगा एंड व्हाट आई विल क्विकली डू इज इसको हम एनालाइज करते हैं, बट ये निफ्टी पे करेंगे। ओके। और इस सिक्योरिटी को मैं चेंज कर देता हूँ, रिलायंस लोडेड था, इसको मैं निफ्टी कर देता हूँ एंड इसको हम देखेंगे ओवर द लास्ट 10 ईयर्स में। ओके। क्योंकि 10 साल के पीरियड में, हाँ एक और चीज जो अभी मैं बताना चाहूंगा, जब भी आप बैक टेस्ट करते हो, कोई भी इंडिकेटर हो, सिंपल हो कॉम्प्लिकेटेड हो, आपको ये जरूर इंश्योर करना है कि आपका जो रेंज है, टाइम रेंज है बैक टेस्टिंग पर्पसेस के लिए, उस रेंज में मार्केट ने तीनों साइकिल्स देखे हो, ऊपर का भी, नीचे का भी और साइडवेज भी। अगर Okay. आपने आपकी स्ट्रैटेजी सिर्फ एक पर्टिकुलर रिजीम में टेस्ट की तो यू विल स्टार्ट बिलीविंग कि स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, बट जब वो रिजीम चेंज हो जाएगी तो आप देखोगे कि वो स्ट्रैटेजी चलती ही नहीं है। आप समझ रहे हो? तो तीनों रेंज ऐसा पकड़ो कि तीनों साइकिल्स उसमें टेस्ट हो जाए। अब ये देखिए, मैंने स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया है जहां जहां ये, इसको थोड़ा मैं जूम इन करता हूं तो आपको पता चलेगा कि बुलिश एनगल्फिंग कहां बना। तो इस एरिया पे मैं जरा स्ट्रेस करता हूं। आप नोटिस करो विवेक जी, इसको थोड़ा मैं जूम इन करता हूं। यहां पे एक ग्रीन आइकॉन आया है। वो क्यों आया है? क्योंकि आप इन दोनों कैंडल्स को अगर कंपेयर करोगे, ये बुलिश एनगल्फिंग था। करेक्ट? तो दो कैंडल्स थे, पहली कैंडल जो थी वो लाल थी, क्लोज अंडर दी ओपन, और सेकंड कैंडल जो थी वो बुलिश कैंडल थी। और उस बुलिश कैंडल के रियल बॉडी ने, यानी कि ओपन और क्लोज के डिफरेंस ने, प्रीवियस बेरिश कैंडल के रियल बॉडी को कंप्लीटली कंटेन कर लिया या एनगल्फ कर लिया। तो ये उसने सही मायने में बुलिश एनगल्फिंग जहां बना था उसको पकड़ लिया है। अब ये जो लॉन्ग पोजीशन आपने ली वो आपने काटी कब और कैसे काटी? टेक प्रॉफिट पे काटी या स्टॉप लॉस हुआ? अगर मैं थोड़ा कुछ दिन आगे जाऊंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपका जो लॉन्ग पोजीशन आपने ली थी इस दिन, वो कट गई है एंड क्लियरली मुझे दिख रहा है कि मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे 3% जो मेरा टेक प्रॉफिट था विवेक जी, वो अचीव हो गया। और ऐसे काफी सारे सिग्नल्स हिस्टोरिकली आए हैं, मैंने 2010 से लेकर 2020 तक का डेटा लिया है। बट आप नोटिस करो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पिछले 10 सालों में डेली चार्ट, निफ्टी के डेली चार्ट पे सिर्फ 9 ही सिग्नल्स आए हैं, सिर्फ 9 सिग्नल्स आए हैं। उनमें से 4 बार आपका टेक प्रॉफिट हुआ, दे वर विनिंग ट्रेड्स। 5 बार आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका जो होराइजन पीरियड रिटर्न था। होराइजन पीरियड रिटर्न का मतलब क्या है? अगर मैंने 2010 में मेरी ट्रेडिंग चालू की होती और मैं सिर्फ बुलिश एनगल्फिंग के बेसिस पे अगर मैंने ट्रेड की होती, तो आज 1 लाख रुपए अगर मैंने इन्वेस्ट किए होते फॉर माई फर्स्ट ट्रेड, आज उस पे मेरा परसेंटेज रिटर्न कितना होता? वो सिर्फ 0.28% होता। आप समझ गए विवेक जी? सो इट इज नॉट इनफ कि आप बोलो अच्छा ये एक पैटर्न है, इसको ये मार्केट पे बना है, चार्ट पे बना है, डेली चार्ट पे बना है या वीकली चार्ट पे बना है या शायद इंट्राडे चार्ट पे बना है, चलो मैं लॉन्ग कर लेता हूँ या चलो मैं शॉर्ट कर लेता हूँ। दिस इज ओनली 40% ऑफ द गेम। द अदर 60% इज क्या इस पैटर्न ने हिस्टोरिकली कुछ अल्फा बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो इस पैटर्न के बनने के बावजूद आप इसको इग्नोर कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
सही बात है। ऑफ्टन क्या होता है, ऑफ्टन क्या होता है, हमें एक अलर्ट आ जाता है कि अरे यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हुआ है, या फिर आरएसआई 30 के नीचे चला गया है, या बुलिश इंगल्फिंग बना है। अलर्ट आना कोई मुश्किल बात नहीं है, वो तो सिंपली आप सेटअप कर सकते हो, जैसे ही कंडीशंस मीट होते हैं आपको अलर्ट आ जाएगा। बट क्या जिस चार्ट पे वो पर्टिकुलर पैटर्न बना है, जिसके बेसिस पे आप ट्रेड करना चाहते हो, क्या उस पैटर्न ने हिस्टोरिकली कुछ सिग्निफिकेंट रिटर्न्स आपके लिए बनाए हैं? अगर नहीं बनाए हैं तो आप उसको इग्नोर करो। ऑफ्टन मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, मार्केट में लोग पैसा इसलिए नहीं गवाते क्योंकि उनके सिस्टम्स इंफीरियर हैं, वो इसीलिए गवाते हैं क्योंकि वो इम्पेशेंट है, वो चाहते हैं कि मैं हर महीने 3% बनाऊं। सो सिस्टम कोई भी हो, ब्लूमबर्ग हो या एक सिंपल एक्सेल शीट हो, एज लॉन्ग एज देयर इज अ प्रोसेस, कंसिस्टेंसी विल बी द नेम ऑफ द गेम। एंड लोग पैसे बनाते हैं, 25% बनाते हैं महीने में, अगले महीने में 50% गवा देते हैं। What you need to do is you need to ensure that your returns are consistent, that your performance is consistent. I would definitely prefer a trader who is able to make 2% every month rather than someone who experiences a very high volatility in returns. मतलब क्या है, जनवरी में 25% बनाए, फरवरी में और 20% बनाए, मार्च में 70% नेगेटिव हो गया। ऐसी वॉलेटिलिटी मुझे नहीं पसंद, और ऐसी वॉलेटिलिटी आपके प्रिंसिपल को पूरी तरह से एक्सटेंड कर देगी। सो प्लीज मेक श्योर देयर इज कंसिस्टेंसी इन द प्रोसेस, प्लीज मेक श्योर यू बैक टेस्ट एवरी सिंगल ट्रेड दैट यू टेक। ये अगर आप करोगे, then clearly I have no doubt that your performance will be much more elevated than it is simply by trading or buying and selling on the back of patterns। ये मैं कहना चाहूँगा। राइट राइट। सो अक्षय, ये तो हो गया रूल बेस्ड ट्रेडिंग की, आपने एक रूल डिफाइन कर लिया, उसको बैक टेस्ट कर लिया, और फिर जो आपको रूल सही लग रहा है आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो। अगर किसी को चार्ट बेस्ड डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करना हो, बिल्कुल, विदाउट गेटिंग टू मच इनटू रूल ड्रिवन एक्टिविटीज, बिकॉज रूल बनाने का एक जो स्किल है और फिर बैक टेस्ट करने का स्किल है, ये हर किसी के अंदर में आ नहीं सकता। इट टेक्स ऑफ टाइम टू रीच टू द प्रोफिशिएंसी व्हिच यू हैव अचीव्ड। तो अगर कोई स्टार्ट कर रहा है और उसको डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करना है, तो क्या क्या होना चाहिए उसका सेटअप? तो पहली चीज तो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। पहली चीज तो अगर आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करना चाहते हो, हम सारों ने आज भले 10-15 साल का एक्सपीरियंस आ गया हो, हमने जो हमारी करियर की शुरुआत की या जो ट्रेडिंग में हम लोग घुसे, दैट वाज एट दैट टाइम डिस्क्रिशनरी वाज द नेम ऑफ द गेम। सो हम सारे हमारी सबकी शुरुआत जो थी, एंड यू विल आल्सो एग्री विवेक बिकॉज़ यू बीन अ ट्रेडर, डिस्क्रिशनरी अप्रोच था कि एक चार्ट पे पैटर्न बनते हुए दिखा, एक स्टॉप लॉस रख लिया, डिसाइड कर लिया कि ये स्टॉप लॉस है, और जनरली ऑब्जेक्टिव ये होता है तो ऑब्जेक्टिव भी रख लिया, टारगेट प्रॉफिट जो भी था। तो डिस्क्रिशनरी अप्रोच को मास्टर करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड बुक्स बाय पीपल who have discovered some of these patterns. So मैं ये recommend करूंगा विवेक जी, and discretionary patterns are not a function of any system. It can be a chart on the NSE website, it doesn't matter. But one thing that I would like to recommend, क्योंकि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस के दुनिया में बहुत सारे धुरंधर आए और गए, but there are some legends, there are some names who people refer back to even today, even though their process might have gone from totally discretionary to now totally non-discretionary, driven by algorithms. But there are two people actually who I would recommend that our listeners definitely read books of. One is Martin Pring and the other is John Murphy. तो जॉन मर्फी की जो किताब है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फ्यूचर्स मार्केट्स, इस किताब को एक बाइबल की बदौलत माना जाता है। इट इज समवन, सो जॉन मर्फी इज समवन who is considered the modern day guru of technical analysis, conventional technical analysis, discretionary technical analysis, patterns, और इन सब की मैं बात करूं तो उनका जो ये किताब है, मैं रिपीट करूंगा, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फ्यूचर्स मार्केट्स, this should be essential reading. It is not reading that is good to have, it is reading that is must have. एक बार आपने वो किताब पढ़ ली, that book will basically become your starting point for discretionary trading. And once over the next few years you become comfortable with the concepts that have been taught by John Murphy in that book, you will be able to you will yourself pivot towards
oh, now that I'm very comfortable with how a Head and Shoulders looks, or how a double top or a double bottom look, now let me try and see if I can quantify, the performance of these patterns. So शुरुआत हमेशा डिस्क्रिशनरी से ही होनी चाहिए. इसीलिए मैं आज भी मानता हूं कि मशीन्स कितना भी एडवांसमेंट अचीव कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर अगले 5 या 10 साल में मशीन्स विल डोमिनेट ऑलमोस्ट every aspect of a trader's workflow, but the genesis of it, the origins of it will still be a discretionary method. तो आप उसको इग्नोर करके, because the world is now moving towards non-discretionary और machine driven trading, आप 100% उसमें नहीं जा सकते. आपको discretionary टेक्निकल एनालिसिस, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग का नॉलेज होना एब्सोल्युटली एसेंशियल है, ये मैं मानता हूँ. जी जी जी. सो अक्षय, मेरे पास कल किसी का फोन आया था और ही इज फ्रॉम दिल्ली, और वो कह रहे थे कि वो पिछले 10 साल से हर तरह का ट्रेडिंग ट्राई कर चुके हैं. वो डिस्क्रिशनरी ट्राई कर रहे हैं तो गलती हो जा रही है, वो रूल डिफाइन कर रहे हैं तो रूल के अंदर में भी कोई महीना रूल काम करता है, कोई महीना रूल काम नहीं करता है. तो वो क्या है, आई थिंक वो एक पॉइंट पे जाके परेशान हो गए हैं कि मेरा कंसिस्टेंट मनी मेकिंग आ नहीं पा रहा है, कि मैं हर महीना मुझे पता है कि इतना रुपया आएगा ही, तो मैं जॉब नहीं छोड़ पा रहा हूँ. तो anything which is coming to your mind to advise to such kind of people, because मुझे लगता है कि इंडिया में अब जो नए ट्रेडर्स आ रहे हैं, थैंक्स टू द ग्रोथ ऑफ डिस्काउंट ब्रोकर्स, थैंक्स टू वर्क फ्रॉम होम कल्चर, मुझे लगता है कि 1 साल बाद 1.5 साल बाद सबके ये क्वेश्चन आएंगे कि ट्राई बहुत कुछ कर दिया बट कंसिस्टेंट मनी मेकिंग हो नहीं पा रही है. तो उनको आज से अगर हमको कुछ सजेशन देना हो तो क्या दे सकते हैं टू चैनलाइज द राइट अप्रोच? बिल्कुल विवेक जी, आई मीन it's a problem. It's a problem, I think, of having too much information at your disposal. आज सोशल मीडिया की वजह से ऐसा हो रहा है कि आप एक ट्वीट देखते हो जहां पे कोई कहता है कि मैंने 5% बना लिए 2 दिन में. नाउ इट माइट बी अ वन ऑफ, और जनरली ये वन ऑफ होता है बिकॉज द मार्केट इज अनफॉरगिविंग. हमने भी आज जितने भी आप ट्रेडर्स देखोगे जिन्होंने अपना नाम बनाया है, काफी सारे पैसे कमाए हैं, उनकी शुरुआत, उनका जो पे ऑफ कर्व था, इट डिड नॉट स्टार्ट पॉइंटिंग नॉर्थ ईस्ट राइट फ्रॉम डे वन. तो लोगों ने काफी बार अपना पूरा प्रिंसिपल गवा दिया, वापस आए, मेथोडोलॉजी को रिफाइन किया. एंड एक चीज जो मैं हर एस्पायरिंग ट्रेडर को, पर्टिकुलरली रिटेल ट्रेडर्स को एडवाइस देना चाहूंगा, वो ये है, देयर आर एक्चुअली 2 पीसेस ऑफ एडवाइस. वन इज, आप नॉइज और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन में डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए. आज इतना सारा नॉइज है, अगर आप, एंड इट इज हर्डिंग बिहेवियर, राइट. आज अगर मैं कंसिस्टेंटली देखता हूँ सोशल मीडिया पे, मैं एक्टिव हूँ, मैं कंसिस्टेंटली देखता हूँ कि यार आए दिन 100 ट्वीट्स आते हैं कि मैंने आज इतनी बना लिए. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट्स व्हेन दैट हैपेंस. मैं सोचूंगा कि यार चलो जॉब तो चल रहा है, बट यहाँ पे तो लोग यार 2-3% दिन के बना रहे हैं, ऑप्शंस बेच रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए. एंड ट्रस्ट मी, दैट इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर. ये मैंने खुद देखा हुआ है, एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल हु हैव गॉन थ्रू द साइकिल्स. सो नॉइज को आप इग्नोर करिए, आप सिर्फ उतना कंज्यूम करिए जो आपके रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल के हिसाब से अलाइन करता है. अगर आप स्कैल्पर हो, तो फिर आपको किसी कंपनी का बैलेंस शीट जानकर या उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करके आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप स्कैल्पर हो. आप चाहते हो कि मैं फ्यूचर्स करूं, मार्केट 9:15 बजे चालू होता है, 10:30 बजे मैं पोजीशन लूंगा, या जब सिग्नल आएगा पोजीशन लूंगा, और 11:30 तक अगर मुझे 0.5% या 1% मिलता है तो मैं निकल जाऊंगा. तो फिर आपको आज रिजल्ट आने वाला है, अरे आज एनालिस्ट कॉल है, इन सब चीजों के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. सो दैट बिकम्स नॉइज. अगर आप इन्वेस्टर हो तो फॉर एग्जाम्पल रिलायंस की अगर मैं बात करता हूँ, आप बोलते हो कि मैं इन्वेस्टर हूँ, 5 साल तक मैं जो भी मैं पोजीशन लेता हूँ, 5 साल के बाद ही मैं रिविजिट करता हूँ. तो आज अगर रिलायंस आपने लिया है और वो 3% नीचे आ गया, तो आपको सोशल मीडिया पे जाने की जरूरत नहीं कि यार आज क्या हुआ, अच्छा वो आज कोई स्टेटमेंट आया किसी का इसलिए गिरा, अब तो प्रॉब्लम हो गया है. अगर आप, तो इस केस में वो नॉइज बन गया आपके लिए. तो आप पहले तो अपना होराइजन डिफाइन करो. सेकेंडली, जो मेरा एडवाइस है वो ये है कि see, it is often a misguided belief कि यार ब्लूमबर्ग होगा तो ही मैं पैसे बना पाऊंगा.
अगर मेरे पास ट्रेडिंग व्यू है या कोई लो प्राइस सिस्टम है तो मैं पैसे नहीं बना पाऊंगा। ये और एक ये एक और चीज है विवेक जी, जो ऑफ्टन लोगों को एडवेंचरस विद अ प्रोसेस होने में मदद नहीं करती। सो यू नो एज लॉन्ग एज, एंड आई हैव सीन इन माय एक्सपीरियंस, मैं हमारे जो ब्लूमबर्ग के क्लाइंट्स आते हैं वो काफी कभी कभी मुझे बोलते हैं कि यार एक सिंपल बैक टेस्ट मुझे रन करना है। कोई आता है बोलता है, कोई फंड मैनेजर होता है बोलता है कि मुझे एक कॉम्प्लिकेटेड बैक टेस्ट तुम बना के दिखाओ। मैंने रियलाइज किया है आफ्टर बिल्डिंग सो मेनी डिफरेंट programs for people that it is often the simplest thing that makes you money. इसका मैं विवेक जी आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा रिलायंस पे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार रिलायंस मार्च में 850 था, इट हैज नाउ गॉन अप मोर देन 100%। और ये ब्लू चिप स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, a stock that is the most heavily weighted in the index. It is not a stock that can be ignored. और इस स्टॉक का अगर 150% आउट परफॉर्मेंस रहा है ओवर द लास्ट 5 मंथ्स, लोग बोल रहे हैं कि यार रिलायंस ही खरीदना चाहिए था, बट 850 के लोग डरे हुए थे। सो आई विल शो यू समथिंग वेरी सिंपल, इस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, which if a trader had deployed, he would have been able to participate in this entire bull market. So that occurred in Reliance. So वो क्या है? So let me just very quickly show it to you, just to kind of drive home the point that simplicity is the name of the game at the end of it all. So मैं एक छोटा सा फंक्शन रन करूंगा. Let us not go into the nuances of the function, but I will explain to you कि यहाँ पे मैंने क्या बनाया है. So give me 1 second, Vivek. Yeah. तो देखिए मैंने लेट मी जस्ट जूम इन ताकि हमारे व्यूअर्स को ये दिखे। मैंने एक सिंपल सिग्नल बनाया है, लॉन्ग ओनली सिग्नल है। अज्यूम करते हैं कि मैं रिटेल बंदा हूं, मैं डेरिवेटिव्स में नहीं करना चाहता, मैं फ्यूचर्स में नहीं करना चाहता, मैं ऑप्शंस कुछ नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ लॉन्ग इन्वेस्टर हूं। और जहां पे भी लॉन्ग सिग्नल बनता है, बोलिंजर बैंड्स और आरएसआई को यूज करके उस दिन मैं लॉन्ग करूंगा और फिर मैं बस होल्ड करूंगा उसको जब तक अपोजिंग सिग्नल नहीं आता। तो ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसको मैं खोलता हूँ और इसको हम रिलायंस पे डिप्लॉय करेंगे विवेक जी। एज यू कैन सी ये रिलायंस का चार्ट है और व्हाट आई विल डू इज मैं 2020 के स्टार्ट से इसको एनालाइज करूंगा। सो मेरा स्टार्ट डेट है 1 जनवरी 2020 और मेरा एंड डेट है आज, और ये डेली चार्ट है। और ये जो आपको ग्रीन सिग्नल्स जो आपको चार्ट पे दिख रहे हैं, ये सब क्या है? ये बेसिकली बाय सिग्नल्स है। ओके, अब मैं कुछ चीजें मैं चेंज करूंगा, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। तो मैं अज्यूम यहाँ पे कर रहा हूँ विवेक जी कि मैं लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर हूँ, मैं 1 जनवरी 2020 में मार्केट में है। ओके, और किसी ने मुझे बोला कि यार रिलायंस 2000 का ऑलमोस्ट 900 हो गया है, तो अभी इट्स अ गुड लेवल टू बाय। बट रिलायंस अगर 50% गिरा है तो आई कैन टेल यू रिलायंस का से पहले शायद हाई था अराउंड 1700 या 1600, तो 1600 का 800 हो गया है। यानी रिलायंस जैसा स्टॉक 50% गिर गया है। उस टाइम पे किसी भी रैशनल इन्वेस्टर का जो मूड होगा वो रिलायंस को बाय करने का नहीं होगा, बिकॉज ही हैज सीन दैट अ स्टॉक लाइक रिलायंस कैन आल्सो फॉल 50%, तो थोड़ा डरा हुआ होगा। सो मैंने क्या किया हुआ है, आई हैव डिजाइन दिस वेरी सिंपल स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी के मैं आपको रूल्स दिखाता हूँ विवेक जी। इसमें कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है जिसके बारे में आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स या लिसनर्स ने नहीं सुना होगा। बोलिंजर बैंड्स के बारे में भी सुना है और आरएसआई के बारे में भी सुना है और डेफिनेटली डीएमआई के बारे में भी सुना है। यूज नहीं करते होंगे बट सुना तो होगा। तो यहाँ पे देखिए विवेक जी, मेरा रूल क्या है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं तब लॉन्ग जाऊंगा जब मेरा क्लोज जो है वो अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर हो। So when my close crosses above the upper Bollinger Band. Upper Bollinger Band क्या है? I'm sure you know and everyone listening into this call also know. उसके बाद मैं ये कहूंगा, जैसे ही मेरा क्लोज अपर बैंड के ऊपर चला जाए, मैं देखूंगा कि क्या मेरा RSI 50 के ऊपर है। अगर है then my second condition is also met. और फिर मैं देखूंगा कि क्या मेरा जो DMI है, जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और उस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के स्ट्रेंथ को जो दर्शाता है, क्या वो अप ट्रेंड में है? तो वो मैंने डीएमआई का रूल डाला हुआ है। ये 3 चीजें जब होंगी तो ही मैं लॉन्ग जाऊंगा, वरना मैं लॉन्ग नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। ओके, अब फिर मैं क्या करूंगा, मैं इस चार्ट को एनालाइज करूंगा। एंड नाउ दिस इज समथिंग विवेक जी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट। जैसे मैंने आपको प्रीवियस बैक टेस्टिंग वाले एग्जांपल में दिखाया,
मैं लॉन्ग गया, उसके बाद मैंने ये बोला कि मेरा टेक प्रॉफिट 3% होना चाहिए और मेरा स्टॉप लॉस 2% होना चाहिए, ये मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पे आप देखो, अगर मैं रिव्यू में वापस जाता हूँ, यहाँ पे लॉन्ग एंट्री तो है बट एग्जिट सिग्नल कुछ भी नहीं है। और ये एग्जिट सिग्नल क्यों नहीं है? क्योंकि दिस स्क्रीन इज बेसिकली मोर रेलेवेंट फॉर समवन हु इज एन इन्वेस्टर। अब आप पूछोगे वो कैसे? तो दैट इज डिफाइंड बाय दिस पर्टिकुलर फील्ड विच इज कॉल्ड इम्पैक्ट। इसका मतलब क्या है? आप दो नंबर्स वहां पे देखोगे, वन इज 0 एंड द अदर इज 20। इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग पोजीशन लेने के बाद 20 दिन बाद मैं इस लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट कर दूं। ओके, मार्केट शायद मेरे लॉन्ग प्राइस से ऊपर गया हो या नीचे, वो मैटर नहीं करता। मैं जब पोजीशन लेता हूं, अज्यूम एक ऐसा इन्वेस्टर है, वो जब पोजीशन लेता है वो लॉन्ग ओनली लेता है, डेरिवेटिव्स करता नहीं है, बट जब भी वो लॉन्ग लेता है वो 20 दिन के बाद उसको एग्जिट करता है और अगले लॉन्ग पोजीशन का वेट करता है। तो यहाँ पे 20 दिन के बाद प्राइस ऊपर हो मेरे एंट्री प्राइस के या नीचे, वो मैटर नहीं करेगा, 20 दिन बाद मैं अपना पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। और आप रियलाइज करोगे, अगर आपने सिर्फ इतना किया होता सिंस द 1st of January 2020, your average return by doing this would have been roughly 6%. Can you believe it, Vivek? And इस पूरे फॉल में, इफ यू लुक एट द फॉल, स्टार्टिंग द 1st of January, एक भी लॉन्ग सिग्नल नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा। That means you have completely stayed away from that 50% cut in Reliance, and you have actually bought into the market only once it started rising. Right. So यहाँ पे complication कहाँ है? कोई complicated rule नहीं है। These are all indicators people have at least heard of. इन सब indicators को use करके भी आप एक robust ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हो। और यहाँ पे ट्रेडिंग सिस्टम भी बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको आरएसआई क्या है पता है, आपको बोलिंजर बैंड्स पता है क्या है। जब ये सिग्नल्स बने, जब आपको अलर्ट आए कि क्लोज अपर बैंड के ऊपर हो गया है, उस दिन आप आरएसआई चेक करो, उस दिन आप डीएमआई चेक करो और लॉन्ग पोजीशन ले लो। इसके लिए किसी सिस्टम की जरूरत नहीं है। बट यू कैन सी in this entire move up in Reliance, you have in fact got 6 long signals, and and you've clocked an average return of close to 6%, which is phenomenal. आई थिंक अक्षय, रूल बेस्ड कैसे ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है उसका बहुत अच्छे से आपने एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है, एंड आई एम श्योर दैट पीपल विल अप्रिशिएट. सो ऑब्वियसली दे विल नीड टू हैव अ टूल टू इम्प्लीमेंट दिस. सो Bloomberg तो खैर है ही, which is the BAP of all the tools. But then there are certain retail investor के लिए tools हैं, जैसे charting is a very good tool. अगर कोई यूज करना चाहे तो उसको यूज कर सकता है. कुछ हमने स्टॉकेज में कर रखा है, वो भी कर सकते हैं. So there are a lot of tools now. आदमी यूज करना चाहे तो यूज कर सकता है. बट हाँ, रूल बेस्ड ट्रेडिंग का आपने बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया हमको. एक लास्ट चीज है जो मैं चाहता हूं कि यू शुड हाईलाइट, बिकॉज यू आर द बेस्ट पर्सन हु कैन हाईलाइट, इज कि प्राइस के बियॉन्ड अगर मार्केट को देखना है, विच आई ऑलवेज आस्क पीपल टू लुक एट, कि ठीक है प्राइस इंपॉर्टेंट है बट और भी बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है जिनको देख के होलिस्टिक जजमेंट बनाना चाहिए. तो क्या क्या देखना चाहिए एक टिपिकल इन्वेस्टर को? सिंपल चीज दिखाऊंगा जो एक्चुअली काम करती है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू ट्रेड इंडियन एक्विटीज और ग्लोबल एक्विटीज. एक कॉन्सेप्ट है हमारी दुनिया में विवेक जी, इट इज कॉल्ड मार्केट ब्रेड्थ. मार्केट ब्रेड्थ का एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको निफ्टी पे दिखाऊंगा. सो लेट मी क्विकली ओपन अ चार्ट ऑफ द निफ्टी. अब एक चीज मैं आपको इसमें सिंपल तरीके से समझाऊंगा विवेक जी, विच विल आल्सो बी बेनिफिशियल टू आवर व्यूअर्स एंड लिसनर्स. ये एक सिंपल डेली चार्ट है निफ्टी का. अब मैं एक मार्केट ब्रेड्थ टूल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. वो टूल क्या है? दैट इज नथिंग बट, एंड लेट मी गो स्लोली, दैट इज नथिंग बट द परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स इन द निफ्टी व्हिच आर ट्रेडिंग अबव देयर 50-day सिंपल मूविंग एवरेज. ओके ओके. निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं. अज्यूम करते हैं कि फ्राइडे 40 स्टॉक ऐसे थे 50 में से जो अपने इंडिविजुअल 50-day एवरेज के ऊपर थे. तो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ मार्केट ब्रेड. तो मैं ये देखना चाहता हूं कि चलो मार्केट तो ऊपर जा रहा है, बट आर द बल्क ऑफ द स्टॉक्स इन द मार्केट सपोर्टिव ऑफ द मार्केट्स एडवांस? जब आप ये सब करते हो, देन यू गो इनटू द फील्ड ऑफ मार्केट ब्रेड. तो मैं ये पर्टिकुलर टूल यहाँ पे यूज करूंगा. सो आई विल सिंपली टाइप in this, so don't have to worry about
the amber box and so on and so forth. मैं यहाँ पे type करूँगा percentage members 50, and as you will see, there is something here that appears, which is called percentage of members with price greater than 50-day moving average. ये मुझे चाहिए था. So what I will do is इसको मैं select करता हूँ. अब एक blue line वहां पे आ गई है. Can you see? इस blue line को मैं उसके खुद के पैनल में डाल दूंगा. So I'm just moving it from the price panel to the panel below it. Okay. अब think about this, Vivek ji, for a second. What I have plotted is the percentage of members in the Nifty which are greater than their own 50-day simple moving average. बहुत simple है. And because it is a percentage number, Vivek ji, it can only move between 0 and 100. Right. So या तो 100% of the stocks in the Nifty will be above your 50-day average, or 0 out of 50 stocks will be above their 50-day average. So मैं क्या करूँगा? I will actually draw two horizontal lines, one at 90, क्योंकि 90 को हम एक overbought threshold मान के चल सकते हैं. So अगर 90% of the stocks are above the 50-day average, then it means the market has already rallied a lot. आप समझ रहे हो? Similarly, नीचे की तरफ I will draw a horizontal line at a really low reading, which is, let's say, 10. Okay. So let me just choose the color green for that, and I will set this to 10. So अब दो horizontal lines आ गए हैं. मेरा जो blue line है, which is the percentage of members in the Nifty above the 50-day average, वो भी आ गया है. So let us see from a sentiment perspective. This is again, we're not looking at price purely. We are looking at a market breadth metric which allows us to time our entries in the markets. So assume करते हैं that most people are comfortable going long. Now you will realize that there have been several instances. थोड़ा मैं और data left में से extract करता हूँ, विवेक जी. You will realize पिछले 5 साल का डेटा हम देखते हैं. You will realize that there have been a few instances जब the blue line actually dropped below the green horizontal line. आपको दिख रहा है? So I'm going to mark those areas with the horizontal line ताकि हमारे viewers देख सकें कि exactly ये कब हुआ. Right. अब आप सोचो यहाँ पे sentiment क्या होगा विवेक जी? The sentiment. So think about the blue line. When the blue line is a really low number, suppose एक ऐसा एक downtrend चल रहा है, it's a very strong downtrend, and the downtrend is so strong that on a particular day, let's say the market falls 5%, and none of the stocks in the Nifty are trading above their 50-day average, which means उस blue line का value क्या होगा? The value of that blue line will be 0. 0, correct. None of the stocks are trading above their 50-day moving average. That is how aggressive that fall has been. Us din, Vivek ji, what will be the sentiment of the average guy who wants to be long? His sentiment will be extremely negative. Absolutely. But can you see, if you simply say that, okay, आज sentiment बहुत negative है, मैं यहाँ buy नहीं करूँगा, I want the blue line to cross back above that oversold reading of 10. And the moment that happens, because sentiment is now going from extremely negative to somewhat positive, that's when I will go long. You can see from this chart itself that you would have bought every single low on this chart. Which means what? Exactly what I said when I spoke about Mr. Buffett. Buy when others are fearful, provided your triggers are met. So what I want is, I want sentiment to be extremely negative. I want the blue line to go below the green line. यानी कि sentiment इतना negative है, it is like a rubber band that cannot stretch anymore. इससे ज़्यादा आप उसको खींच नहीं सकते हो. So wait for sentiment to become extremely negative. Then wait for some sort of a recovery to occur in the price so that the blue line goes back above the green line. That should become your trigger. If you had simply done this religiously, except for a couple of lows which you didn't time so well, you have almost caught
every single low. I'm talking as an investor, not as a trader, क्योंकि trader के Yeah. लिए 3% का movement भी बहुत ज्यादा हो गया. But if you are someone who invests in the Nifty ETF, the Nifty Bs, then this strategy can be a wonderful strategy for you, because you are using extreme negative sentiment to time your long entries. So contrarian view जो है वो काम करता है, but make sure you know the process you are using to benefit from that contrarian sentiment. This is a great example of it. सही है. आप मार्च का भी लो देखो विवेक जी. अगर मैं इस ब्लू लाइन का लो आपको दिखाऊंगा, लुक एट द लो वाज जीरो का मतलब क्या है? नो स्टॉक इन द निफ्टी at the March lows was trading above the 50-day moving average, which means there was maximum fear. बराबर. अब अगर maximum fear है, मार्केट नीचे भी जा सकता था. I don't buy just because the blue line is at zero. वो परसेंटेज नंबर है, वो जीरो के नीचे तो जा ही नहीं सकता. मार्केट कितना भी गिर सकता है, बट वो नंबर जीरो के नीचे नहीं जा सकता. सो व्हाट यू विल वेट फॉर इज, यू विल वेट फॉर द ब्लू लाइन टू गो बैक अबाउट द ग्रीन लाइन. और वो कब हुआ? वो यहाँ पे हुआ. अगर आप वहां पे भी लॉन्ग जाते तो यू वुड हैव बीन 3,500 पॉइंट्स इन द मनी आज. सही है. So Akshay, I mean, alternative data points को use करके कैसे conviction बढ़ाया जाए, चाहे आप invest कर रहे हैं, चाहे आप trading कर रहे हैं. I think this whole video has been phenomenal learning for me. And you know, because you're using Bloomberg, it looks so easy, so smooth. But obviously, when you actually get into it, if you don't have Bloomberg, तो फिर आपको Excel में वो काम करना पड़ता है या कुछ और tool use करके करना पड़ता है, तो थोड़ा complication आता है. But with price point, if one start using these alternative data points, I am sure that the probability of success for that trader investor will go up definitely. Absolutely, Vivek ji. And you know, I'm a big fan of StockEdge. You already know this. The way you have bought this world of idea generation to the retail investor is second to none. और मैं सारे हमारे जो viewers हैं और listeners हैं उनको बताना चाहूँगा that Vivek ji and the team have done a phenomenal job with getting you all of the data that you need. Of course, कुछ ऐसे data sets होंगे जो शायद Bloomberg पे हैं, जो StockEdge पे नहीं होंगे, but I can assure you, if there is something that you want StockEdge and the team to build, Vivek ji has always made sure that the build happens, and so that the retail investor in the end also gets access to the same kind of analytics, the same kind of idea generation tools that will be available to a professional money manager using a Bloomberg or a Reuters or a FactSet. So yeah, so thank you Akshay for recording this lovely piece for us, and let's stay in touch. Users, friends, अगर आपको अच्छा लगा तो आपको तो पता है इस वीडियो में क्या करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है. और देखिए, ये जैसा कि मैंने कहा कि बिकॉज अक्षय हैज दिस पावर ऑफ ब्लूमबर्ग विथ हिम, तो एक एडवांटेज मिल जा रहा है अक्षय को, हम लोग जैसे लोगों को. बट इस वीडियो से मैंने एक चीज लोगों को बताई है अक्षय की, गेट इनटू द माइंड ऑफ अ प्रोफेशनल ट्रेडर और प्रोफेशनल इन्वेस्टर, एंड आप एक पर्सपेक्टिव दिए लोगों को. एंड इफ यू वांट टू सक्सीड एक्चुअली लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली, तो वो सोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी. ठीक है, प्राइस बेस एक्शन, टेक्निकल चार्ट, ट्रेडिशनल देख के चालू करना इज फाइन, बट इवेंचुअली वो सोच डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आप एक बड़ा पैसा कमाने का एक जरिया बना पाएंगे मार्केट को. So I hope this point was communicated to you very clearly, and Akshay is the best guy who could have done this. Thank you, Akshay. Thank you so much, Vivek. Stay safe, everyone. Take care and God bless. Be in touch. Thank you. Thank you, Vivek. Good day. Bye. Bye-bye.